it is true that Modi government is a welfareistic government. It is making policies for the downtrodden community, the downtrodden people of the Indian nation. And obviously, if Modi government have given us these rights, there is a 101% chance that we will vote for the BJP government and to the Modi government. क्योंकि मोदी सरकार अगर मोदी गवर्नमेंट ना आती केंद्र में, अगर 100 साल और ना आती तो वाल्मीकि समाज की जो बेड़ियां थी वो नहीं कटनी थी। क्योंकि हम यहाँ एक जैसे कैदी कैद में रहता है, वो भी उसका भी एक कोई टाइम पीरियड होता है, 10 साल 20 साल 25 साल, उसको उसके बाद मुक्ति मिलती है। लेकिन वाल्मीकि समाज ने सफ़र किया पिछले 70 सालों से। With the abrogation of the Article 370 and granting of the voting rights and the domicile right, and we have also been enrolled on the scheduled list of the UT now as per the amendment done recently on February 26th. Like there is a ray of spark. बहुत खुश हैं हम। ऑफ कोर्स मोदी सरकार को ही हम वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। Were they not the governments were present earlier also, but what they did nothing. It is a big question mark, and there is a, like I would say, a black cloud on the minds. हम तो अपने खून से लेके वोट मोदी जी को करेंगे, करते ही रहेंगे, जब तक जिएंगे मोदी सरकार को वोट ही देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। So it was the duty of the government, if they were taking into the vision the rehabilitation of the terrorists, why were not they taking into the rehabilitation of the Valmiki Samaj? जैसा कि हमारे पहले जो स्टूडेंट थे वो किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, आज वो अप्लाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं। हमारे साथी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं। हम IAS भी कर सकते हैं, आने वाले समय में IPS भी बन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जो मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, और अपने जब तक हम मोदी साहब है, हम हैं, मोदी साहब को ही वोट करेंगे, BJP को ही वोट करेंगे। As you said that lot of burden was there, rather I would say there was a mass violation of the human rights. देखिए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है सर। ये छोटा सा वर्ड है, हम कहने में और करने में बड़ा फर्क है। हमारी चौथी पीढ़ी है जो भी पढ़ लिख रही है। इस समय लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है और पहले दौर की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे मसले मसाइल यहां पर है। धारा 370 की समाप्ति हुई और एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन रहा मोदी सरकार का जिसने कि हर किसी पर कोई ना कोई असर डाला। वाल्मीकि समाज की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप कहें फायदा वाल्मीकि समाज को हुआ, POJ के रेफ्यूजीज को हुआ। हालांकि रेफ्यूजीज ने कहा कि वो BJP को इन चुनावों में समर्थन करेंगे, लेकिन वाल्मीकि समाज क्या सोचता है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनके पास। और मेरे साथ मीना जी हैं, मीना गिल हैं। मीना गिल जी, 370 हटा, आपको वोटिंग राइट्स मिले, समानता का अधिकार मिला। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं जानता हूं आप LLB के स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगी पूरी इस डेवलपमेंट? With the abrogation of the Article 370 and granting of the voting rights and the domicile right, and we have also been enrolled on the scheduled list of the UT now as per the amendment done recently on February 26th. Like there is a ray of spark in the eyes of the youth, as you can see me also, because there is a gap between my studies. I had to drop just because of the state subject, and that there is a lot of gap between my studies. And once this article has been abrogated, the Article 35A and 370, now I have again pursuing my studies. As you told me that I'm a student of LLB, and with the voting rights, like now we have a right to choose our representative. And obviously, if Modi government have given us these rights, there is a 101% chance that we will vote for the BJP government and to the Modi government. As you have said me that you have to face the gap. You had faced a gap just because you were not having a state subject, and right now you are having domicile with you and every damn thing what you want for your studies. So do you think there a huge burden has been eroded by your minds, and now you are free to live in a society who respects you and who gives you the equal rights? As you said that lot of burden was there, rather I would say there was a mass violation of the human rights. The nation like ours, the India, which is a socialist, welfareistic and democratic country, in the JNK state before the abrogation of 370, there was a mass violation of the human rights, and we were being working as a bonded labor. Though we were educated and we had a caliber, but still the youth could not pursue any profession of his or her own choice, any academic or professional courses. But now
we will be contributing to the nation building, because there are many students like me who are pursuing law. There are students who want to be into business. There are students who want to be a JK officers. There are students who want to be a doctor. So progressive it is, and it will be a step ahead in the nation building. And about the dignity, we have got the respectable earlier also, that like discrimination has always been a part, because we belong to a nation where for many years Manu Samriti was there, and things it will not be will be changing at once. Even the educated class is little I would say like reluctant to accept this, but it will take time. The changes will occur, because changes do not come in one day. It takes a time. Many government have ruled the country for so many years, but they didn't think about to take this step, which has been taken by the Modi government. So, do you believe that the Modi government is really a visionary government to bring this sort of changes in the society, in the country, so that those downtrodden caste, downtrodden societies who were earlier deprived of every rights are now enjoying every damn thing which they deserve to? Yes, it is true that Modi government is a welfareistic government. It is making policies for the downtrodden community, the downtrodden people of the Indian nation. Yes. Recently, you may have because it is in the news only. As per the Pradhan Mantri Awas Yojana, the Kashmiri Pandits also have been rehabilitated. I am not criticizing any government in particular. Rather, I am not criticizing, because positive criticism has to be there. Healthy criticism has to be there for the development of the nation. And among the political parties, what is going, that is none of our business. But being an individual and a citizen, what our rights are, our socialistic welfareistic scheme should be there, policies should be there, which Modi government have done, and it will be doing. Rather, the state government earlier, we were here since 1957, when my forefathers and great grandfathers, they were brought from Punjab. But were they not the governments were present earlier also? But what they did nothing. It is a big question mark, and there is a, like I would say, a black cloud on the minds. ठीक है? They could have rehabilitated, or they could have amended or relaxed this 370 for at least the Valmiki Samaj, because it is not we who were brought to the J&K state, but it is the government had asked the help from the neighboring Punjab state. So it was the duty of the government, if they were taking into the vision the rehabilitation of the terrorists, why were not they taking into the rehabilitation of the Valmiki Samaj? It's a big question mark you are putting up. Now you are going to cast your vote for the first time. How much anticipated, how much curiosity you are having just to go and press the ballot? There is a big confidence, and confidence, because confidence in it, when you're confident, if somebody has done something for you, obviously you have to appreciate, because if someone has taken you up from the downtrodden and towards the development, it is your duty. As at the same time, universal franchise is there. We have the right. We will vote for the government who will take up the demands and the issues of the Valmiki Samaj, and vis-a-vis as a whole, for the development of the downtrodden community and the nation at the whole. जी, मेरा नाम घारू भट्टी है। मैं वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमें डोमिसाइल वगैरह प्रोवाइड करवाए गए, और उसके बाद हमें वोटिंग राइट मिला है। और जैसा कि आज चुनावों का माहौल है, तो बड़ी खुशी की लहर है वाल्मीकि समाज में कि हम अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए, हम बड़ी प्रशंसा करते हैं सरकार की, क्योंकि हम तो पहले कई बार बोल चुके हैं कि मोदी सरकार, अगर मोदी गवर्नमेंट ना आती केंद्र में, अगर 100 साल और ना आती, तो वाल्मीकि समाज की जो बेड़ियां थी वो नहीं कटनी थी। क्योंकि हम यहाँ एक जैसे कैदी कैद में रहता है, वो भी, उसका भी एक कोई टाइम पीरियड होता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसको उसके बाद मुक्ति मिलती है। लेकिन वाल्मीकि समाज ने सफ़र किया पिछले 70 सालों से कि वो तो इस जो स्टेट थी, ये यूटी है, उसमें ना तो वो धारा 370 के एब्रोगेशन की पहले की बात करूं कि वो समाज चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाता था, उसको सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही जॉब मिलती थी, गंदगी ढोने की जॉब मिलती थी, और ना वो जगह खरीद सकता था, ना वो प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे बच्चे कर पाते थे। तो ये एक बड़ा ये काला कानून जो था, वो
हमारे सर पे मंडरा रहा था। बिल्कुल सर, हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से भी और सभी से ही प्रार्थना करते हैं कि पहली सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार आई है, जो गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, और ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज जो दबा कुचला समाज है, पिछले 70 सालों से जो जहालत की ज़िंदगी मैं कह रहा हूँ जी रहा, उसको एक वरदान के माफिक ये जो सरकार है वो साबित हुई है हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। आप प्रेसिडेंट हैं इस समाज के, इस एरिया के, कितना बदलाव मानसिक तौर पर भी देखा आपने लोगों में जब ये पूरा उन्हें अधिकार मिले, जब एक समानता मिली? जी सर, बड़ा देखिए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है सर। ये छोटा सा वर्ड है, हम कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। हमारी चौथी पीढ़ी है जो भी पढ़ लिख रही है, और आज हमारी आप मानेंगे कि हर जगह जहाँ भी हमारे बच्चे रह रहे हैं, आज हर जगह कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चियाँ हमारी एलएलबी कर रही हैं। जो समाज एक स्वीपर के ऊपर जो एक चपरासी की नौकरी होती, उसके लिए भी कैपेबल नहीं था, आज वो इतने इतने पदों पे बैठने की तैयारी कर चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ यही मोदी गवर्नमेंट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है। और ये बड़ा एक मानसिक दबाव था हमारे ऊपर कि बच्चे सोचते थे कि हमने पढ़ लिख के क्या करना है, जॉब तो मिलनी ही नहीं है, मकान हम खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि जगह लैंड के लिए भी हमें वो नहीं थे, राइट नहीं थे। तो ये एक बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है 370 टूटने का, ना कि सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए, गोरखा के लिए भी है, अपना वेस्ट पाक रिफ्यूजी के लिए, और आदि आबादी जो हमारी महिलाओं के लिए, सबके लिए ये वरदान साबित हुआ है। सर मैं तो थैंकफुल हूँ जनाब नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने हमारे लिए जो 370 हटाई है, हमारी एक बेड़ियाँ हट गई हैं। जो जंजाल था, चौथी पांचवी पीढ़ी है, 3-4 पीढ़ी तो अनपढ़ी रही, इसी वजह से रही कि हमारे लिए पीआरसी जरूरी थी, स्टेट सर्टिफिकेट का बड़ा मांग थी, हर डॉक्यूमेंट मांगता, वो हमारे पास था नहीं था। सिर्फ एक था कि हमें जो हमारे यहाँ लोगों को सफाई कर्मचारी की नौकरी दी जाती, उन बाकी चीज़ों के लिए बाधा थी कि आप पढ़ लिख लो, जितना मर्जी का पढ़ लो, पर आपको लोगों को सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिलेगी। जो मोदी सरकार आई है, उन्होंने पहली बार जो 2019 में 5 अगस्त को जो 370 धारा तोड़ी, उसके बाद हमें एक रिलैक्स महसूस हुआ है कि हम आगे पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे लॉ भी कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं, हम आईएएस भी कर सकते हैं, आने वाले समय में आईपीएस भी बन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जो मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, और अपने जब तक हम मोदी साहब है, हम हैं, मोदी साहब को ही वोट करेंगे, बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनका बनता भी अधिकार बनता भी हमारे से वोट लेना, और हमारा भी जरूरी है उनको वोट देना। हाँ जी। आपको लगता है कि एक समानता हो गई है, पैरेलल हो गया सब कुछ? सर हुआ क्यों नहीं है, बहुत सारा हुआ है सर। आप तो सामान ही सामान है, जहाँ जाते हैं सामान है, हर घर में। पहले तो था, कोई जानता नहीं था, कई एरियो में जानते नहीं थे वाल्मीकि समाज के लिए। आज यहाँ से जम्मू कश्मीर सारा घर घर कोने कोने में वाल्मीकि समाज का नाम है। ये देन हमारी नरेंद्र मोदी की है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सर। आने वाली पीढ़ी हमारी जिंदा हो गई, एकदम जिंदा हो गई। उन्होंने एकदम, उनके चेहरे पे मुस्कान, एक नई लहर है उनके चेहरे पे, तो हम तो बहुत खुश हैं सर। मेरा नाम एकलव्य है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। देखिए, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते यही कहूँगा कि जो मुश्किलें हमें पहले पढ़ाई में आती थी, पढ़ने लिखने में, वो आज हमें नहीं आ रही। जैसा कि हमारे पहले जो स्टूडेंट थे वो किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, आज वो अप्लाई कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं। हमारे साथी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जा रहे हैं, तो आज हमें काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। आप स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा एक बोझ था इससे पहले जो अब नहीं है? बहुत बड़ा बोझ था। मैं खुद की बात करूं तो मैं जैसे एलएलबी करना चाहता था, तो मैं जब मुझे पता चला कि मैं एलएलबी नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा एलएलबी करने के बाद, तो काफ़ी बोझ था, काफ़ी मुश्किल आई थी। तो मैंने फिर ड्रॉप आउट किया था, एलएलबी नहीं की थी। सबसे पहले तो जो मुद्दे हमारे हल हुए हैं, डोमिसाइल हमें मिला है, वोटिंग राइट मिला है, और अभी हाल ही में हमें इंक्लूड किया गया है एससी लिस्ट में। सबसे पहले तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए वोट करेंगे, और आने वाले जो हमारे मुद्दे हैं, मिसाइल, वो सबसे बड़े ये हैं कि हमें सेपरेट कोटा दिए जाए। हमारी जो मुख्य मांग है, हमें जो हमारा बैकलॉग है वाल्मीकि कम्युनिटी का, वो जो 370 और 35A की वजह से हम जो नहीं कर पाए हैं, वो हम चाहते हैं कि हमें सरकार उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करे। आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार ने जो किया? अब तक हम संतुष्ट हैं, और हमारी जो उम्मीदें उनसे और भी ज़्यादा हैं। हम जो हमारे मुद्दे रह गए हैं, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द हल हों। इस हिसाब से आप वोट किसे करने वाले हैं? जी साफ है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब बिल्कुल करेंगे, हम मोदी सरकार को ही करेंगे। हम कोई 70 साल से ग्रामीण की जजीरों में जी रहे थे, जब से मोदी सरकार आई है, कोई 370 धारा टूटी है, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बच्चे पढ़ लिख के अच्छा
कोई आगे कोई वकील, कोई कोर्स का डॉक्टर बनेगा। पहले हमारे 70 साल में हम गुलामियों की जंजीरों में बंधे हुए थे। ये मोदी सरकार जो आई है, ये हमारी गुलामी की जंजीरों इन्होंने तोड़ दी है। अब दोबारा से चुनाव है, किसे वोट करेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा? हम तो अपने खून से लेके वोट मोदी जी को करेंगे, करते ही रहेंगे। जब तक जिएंगे मोदी सरकार को वोट ही देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। कितना बदलाव आया है आपकी पीढ़ी? बहुत बदलाव आया। पहली सरकारों ने हमारा कोई सोचा नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो हमारा कोई सोचा नहीं। वोट लेते रहे, वोट हमारे को लेते, लारे लगाते रहे, हम आपका मल्ला रेगुलर कराएंगे, हम आपका वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। जब वोट ले जाते थे फिर बाद में भूल जाते थे। अब ये मोदी सरकार आई है, ये हमारे को हक बहुत अच्छा किया है। जो हमारा ये 313 तोड़ के हम जम्मू के वसनीक बन गए हैं। अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो 5 साल के बाद वो अमेरिका का बन जाता है। हमारी 4-5 पीढ़ी इधर हो गई, हम हमारे जम्मू को बोलते थे आप बाहर के हो। तो अब मोदी सरकार आई तो हमारे को ये हक दिला दिए, हम अंदर के बन गए। आप खुश हैं मोदी सरकार? बहुत खुश हैं जी, बहुत बहुत खुश हैं। अब तो हम अपने खून से लेके वोट पाएंगे मोदी सरकार को। हम मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारे समाज को मतलब कि एक मतलब दिशा दी है। और क्या बोलते हैं, मतलब कि जो हमारे बच्चे कल मतलब कुछ कर नहीं पाते थे, आज वो हर फील्ड में जा सकते हैं। बहुत खुश हैं हम। ऑफ कोर्स मोदी सरकार को ही हम वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। किसी सरकार ने हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा। मोदी सरकार ही आई है जिन्होंने आते ही हमारे समाज की सुध ली है और काम किया है, बहुत काम किया है उन्होंने हमारे लिए। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं दिल से।